Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Dua Javed, phone number 7021. My instructor name is Sadaf Javed, and today I am here for discussing a topic which is chromatography. Chromatography is a very vast topic and it is very important from the industrial point of view. Suppose अगर हम किसी इंडस्ट्री में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, then we should know well about chromatography. So today we will discuss about what is chromatography, what is the principle of chromatography, what are the applications of chromatography, and what are the different types of chromatography. So let's start. Chromatography. Chromatography is a purification or a separation technique that is used to separate different components from a mixture. किसी भी मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है. सपोज हमारे पास इंक है एज अ मिक्सचर, तो इंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी. The word chromatography is derived from two Greek words, chroma, which means color, and graphene, which means to write. So collectively, chromatography is called as color writing. Chromatography has two phases, mobile phase and the stationary phase. मोबाइल फेज हमारे पास या तो लिक्विड होता है या गैस होता है, और स्टेशनरी फेज हमारे पास या सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है. मोबाइल फेज हम कभी भी सॉलिड नहीं ले सकते और स्टेशनरी फेज हम कभी भी गैस नहीं ले सकते. So in chromatography the separation is based on differential partitioning between the mobile phase and the stationary phase. Next is the history of chromatography. यानी क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया या डेवलप किया. Chromatography, literally color writing, was first employed by Russians Mikhail Tesvet in 1900. टेस्वेट ने 1900 में फर्स्टली क्रोमेटोग्राफी को डेवलप किया था. He continued to work with chromatography in the first decade of the 20th century. Firstly, chromatography was used for the separation of plant pigments such as chlorophyll, keratins and xanthophylls. Plant pigments को isolate करने के लिए chromatography को सबसे पहले डेवलप किया गया था या यूज किया गया था. As these plant pigments have different colors like green, orange and yellow, so they gave the technique its name chromatography, which means color writing. Next is the principle of chromatography. The principle of chromatography is based on the mobile phase and the stationary phase. The interaction between the mobile phase and the stationary phase result in the separation of the compound from the mixture. Mobile phase और stationary phase के दरमियान में जो इंट्रैक्शन होता है उसकी बेस पे सेपरेशन होती है, and that separation is called as chromatography. Applications of chromatography. Chromatography की बहुत ज़्यादा applications होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, और लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी chromatography बहुत यूज़ होती है. Some of the major applications are: the chromatographic technique is used for the separation of amino acids, proteins and carbohydrates. It is also used for the analysis of drugs, hormones and vitamins. It is helpful for the qualitative and quantitative analysis of complex mixtures. This technique is also useful for the determination of molecular weight of proteins. प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज. सम ऑफ द मेजर टाइप्स आर पेपर क्रोमेटोग्राफी, thin layer chromatography, column chromatography, ion exchange chromatography, and the last one is affinity chromatography. First is paper chromatography. In paper chromatography, paper is used for the separation. That's why this technique is called as paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी के हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: पेपर, सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड सैंपल. पेपर जिस पे हमने सेपरेशन करनी है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन जिसकी हेल्प से हम सेपरेशन करते हैं, एंड सैंपल जिसको हमने सेपरेट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी विल सिलेक्ट आवर पेपर. पेपर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है वॉटमैन पेपर और एक मॉडिफाइड पेपर. मॉडिफाइड पेपर्स में हमारे पास हाइड्रोफोबिक पेपर्स आ जाते हैं, हाइड्रोफिलिक पेपर्स आ जाते हैं, या फिर वो पेपर जिन पे सिलिका और एल्यूमिना की कोटिंग हो. मोस्टली हम वॉटमैन पेपर को यूज़ करते हैं बिकॉज वॉटमैन फिल्टर पेपर हैव डिफरेंट ग्रेडिंग साइज, मीन्स इट हैव डिफरेंट पोर साइज. पेपर को सिलेक्ट करने के बाद हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे.
सॉल्वेंट सॉल्यूशन हमारे पास या तो हाइड्रोफोबिक होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर और द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कैसे होती है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम वॉटमैन फिल्टर पेपर लेंगे एंड वी विल ड्रॉ अ लाइन 1 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बॉटम। दैट लाइन इज कॉल्ड एज द बेस लाइन। एट द मिडल ऑफ दैट लाइन वी विल अप्लाई अवर सैंपल। सैंपल को अप्लाई करने के बाद हम हमारे पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हैंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्लिप और अ वुडन पीस। क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हमारे पास पहले से हमारा सॉल्वेंट अवेलेबल है। बिफोर 20 to 25 मिनट्स वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में सॉल्वेंट पोर करके रखा सो दैट टैंक की जो इन्वायरमेंट है वो सैचुरेट हो जाए। पेपर को हैंग करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेपर है वो ना तो टैंक की वॉल्स को टच करें और ना ही हमारी जो बेस लाइन है वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिप हो। आफ्टर दैट वी विल कवर द क्रोमेटोग्राफिक टैंक विद द हेल्प ऑफ अ लिड। After 10 to 15 minutes, the solvent solution start moving upward और solvent solution के साथ हमारे components भी move करेंगे and they travel different distance। उसके बाद हम हमारे पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक से बाहर निकालेंगे, उसको ड्राई करेंगे and then we will calculate the RF value। RF value is the retardation factor। It can be calculated by dividing the distance traveled by substance to the distance traveled by the solvent front। यानी हमारे सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और हमारे कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास RF वैल्यू आ जाएगी। द RF वैल्यू हेल्प्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपोनेंट अगर हमारे पास होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए RF वैल्यू इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज वी हैव ए RF वैल्यू चार्ट। हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स की RF वैल्यू का एक चार्ट होता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से जब हम RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फिर उसको चार्ट से मैच करते हैं एंड देन हमें पता चल जाता है कि जी ये कौन सा कंपोनेंट है। एक और तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन कि अगर हमारे वहाँ कंपोनेंट्स जो हैं वो नेकेड आई से विजुलाइज ना हो तो उसके लिए हम लोकेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। लाइक अमाइनो एसिड के केस में हम नील हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं एज अ लोकेटिंग एजेंट। नेक्स्ट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। Thin layer chromatography is widely employed laboratory technique and is similar to paper chromatography। Thin layer chromatography paper chromatography की similar होती है but the difference is that thin layer होती है वो on the basis होती है, यानी कि कंपोनेंट्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम TLC प्लेट को यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ पेपर। TLC प्लेट हमारे पास मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल होती है और इसको हम लैब में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। लैब में TLC प्लेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें ग्लास स्लाइड रिक्वायर्ड होती है और उस पर हम सिलिका जेल की थिन लेयर अप्लाई करते हैं देन हमारी TLC प्लेट रेडी हो जाती है। जबकि जो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होती हैं उनमें एल्युमिनियम बेस होती है, यानी कि ग्लास स्लाइड की जगह वहाँ पे एल्युमिनियम बेस यूज़ की होती है। तो जैसे भी प्रिपेयर कर लें TLC प्लेट हेल्पफुल होती है। तो TLC प्लेट हमारे पास प्रिपेयर हो गई देन वी विल ड्रॉ अ लाइन 1 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बॉटम। दैट लाइन इज कॉल्ड एज द बेस लाइन। एट द मिडल ऑफ दैट लाइन वी विल अप्लाई अवर सैंपल। सैंपल को अप्लाई करने के बाद हम हमारे TLC प्लेट को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रखेंगे। टैंक में हमारा सॉल्वेंट पहले से अवेलेबल है, फिर उसको हम कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लिड, यानी टैंक को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अ लिड। After 10 to 15 minutes the solvent solution start moving upward। solvent solution के साथ हमारे components भी मूव करेंगे upward via capillary action। यहाँ पे जो components मूव करेंगे वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी की डिफरेंस की बेस पे कंपोनेंट्स डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। जो हाई पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और जो लेस पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो हाई डिस्टेंस यानी कि मोर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। उसके बाद हम हमारे TLC प्लेट को टैंक से बाहर निकालेंगे, उसको ड्राई करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द RF वैल्यू। नेक्स्ट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज प्योरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ कॉलम, यानी कि जहाँ पे प्योरिफिकेशन के लिए कॉलम को यूज़ किया जाता है उसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम इज अ ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। In column chromatography, stationary phase is solid and mobile phase is liquid।
इसके अलावा इसमें एक सैम्पल होता है जिसको हमने सेपरेट करना है और एक कॉलम जहाँ पे हम सेपरेशन करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ऑटोमेटिकली एंड मैन्युअली। ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टा प्योरीफायर सिस्टम। ये एक मशीन होती है जिसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है। मैन्युअली कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले हम हमारे स्टेशनरी फेस को सिलेक्ट करते हैं। मोस्टली सिलिका पाउडर को एज अ स्टेशनरी फेस सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम हमारे कॉलम को पैक करेंगे। कॉलम को पैक करने के लिए हम कॉटन प्लग को एट द बॉटम ऑफ कॉलम फिल करेंगे, यानी कि एक कॉटन प्लग को कॉलम के बॉटम पे फिल कर देंगे एंड देन वी विल ऐड सैंड। सैंड जो हम फिल करेंगे वो ध्यान रखना है कि एट द कर्वी पार्ट ऑफ द कॉलम है। सैंड जो यहाँ पे यूज हो रही है वो एसिड वॉश्ड सैंड होती है दैट इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट। उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी की पैकिंग जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, ड्राई पैकिंग एंड वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग में हम सिंपली सिलिका पाउडर को ऐड करेंगे एंड देन वी विल ऐड सॉल्वेंट एंड देन अगेन सैंड। जबकि वेट पैकिंग में हम एक स्लरी प्रोड्यूस करेंगे। स्लरी इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सॉल्वेंट। तो स्लरी को प्रोड्यूस करके हम हमारे कॉलम में ऐड करेंगे एंड देन सैंड। सैंड हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज सैंड इज एन इनर्ट मटेरियल, यानी सैंड जो है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करती है विद द सॉल्वेंट और विद द सिलिका। कॉलम को पैक करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉलम है उसमें कोई बबल प्रोड्यूस ना हो, हमारा सिलिका ड्राई ना हो, बिकॉज अगर सिलिका ड्राई हो गया तो कॉलम में क्रैकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस को सिलेक्ट करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि ये ऑपोजिट नेचर का हो, यानी स्टेशनरी फेस से ऑपोजिट नेचर का हो। स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका है, सिलिका इज पोलर, तो हम कोई ऐसा मोबाइल फेस लेंगे जो कि लेस पोलर। देन वी विल रन द सैंपल थ्रू आउट द कॉलम। सैंपल को रन करवाने के बाद हम सॉल्वेंट को लोड करवाएंगे। जैसे ही हम सॉल्वेंट को लोड करवाएंगे हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जो पोलर कंपोनेंट्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे और जो लेस पोलर कंपोनेंट्स हैं वो फास्ट मूव करेंगे एंड देन वी विल हैव द फ्रैक्शंस, यानी कि हमारी जो सेपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द प्योरिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन आयंस, यानी कि आयंस की बेस पे जो सेपरेशन होती है उसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है हमारे पास लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, तो उनको प्योरीफाई करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास सबसे पहले एक रिजर्वियर होता है, यानी कि एक बॉटल। उस बॉटल के साथ कॉलम अटैच रहता है। कॉलम इज द ट्यूबलेट स्ट्रक्चर। कॉलम के साथ हमारा डिटेक्टर अटैच होता है और डिटेक्टर के साथ कंप्यूटर सिस्टम। हमारा जो रिजर्वियर है यानी बॉटल, उसमें हमारा मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज इज द बफर सॉल्यूशन। स्टेशनरी फेज हमारा कॉलम में होता है। स्टेशनरी फेज इज द सॉलिड एब्जॉर्बेंट मैटर। यहाँ पे हम जो स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं वो रेजिन है। रेजिन आर द स्मॉल बीड्स दैट कैरी चार्ज। रेजिन की बेस पे हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड एनायन एक्सचेंज मीन्स पॉजिटिव चार्ज। यानी रेजिन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कैटायन एक्सचेंजर कहलाएगा और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एनायन एक्सचेंजर कहलाएगा। रेजिन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। फंक्शनल ग्रुप इज ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ रेजिन, यानी कि अगर हमारा रेजिन कैटायन है तो फंक्शनल ग्रुप एनायन होगा। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कैसे होती है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, इक्विलिब्रेशन, लोडिंग, वॉशिंग एंड इल्यूशन। सबसे पहले है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में हम एक इक्विलिब्रेट सॉल्वेंट को रन करवाएंगे थ्रू आउट द सिस्टम। इक्विलिब्रेट सॉल्वेंट को जब हम रन करवाएंगे तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी एक बेस लाइन मिलेगी। वो हमें बताएगी कि हमारा जो कॉलम है वो फुली पैक है और अब हम हमारे सैंपल को लोड करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज लोडिंग। लोडिंग में हम हमारे सैंपल को लोड करवाएंगे इन द सिस्टम। जब हम सैंपल को लोड करवाएंगे तो सैंपल के जो चार्ज आयंस हैं
वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे। यानी हमारे पास लेट्स सपोज प्रोटीन है एज अ सैम्पल, प्रोटीन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में हम जो एक्सचेंजर यूज़ करेंगे वो आयनाइन एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, यानी रिप्लेसिंग पॉजिटिव चार्ज एंड फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटीन का जो नेगेटिव आयंस हैं वो फंक्शनल ग्रुप के नेगेटिव आयंस को रिप्लेस करके खुद रेजिन के साथ बाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉशिंग। वॉशिंग में हम एक सॉल्वेंट को रन करवाएंगे, यानी एक बफर को रन करवाएंगे थ्रू आउट द सिस्टम, और इसमें ये होगा हमारे जो जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है या जितने भी एक्स्ट्रा आयंस हैं वो वॉश्ड आउट हो जाएंगे, और जो हमारे रिक्वायर्ड प्रोटीन है या रिक्वायर्ड कंपोनेंट है सिर्फ वो हमारे सिस्टम में रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ एल्यूशन। एल्यूशन में हम हमारे मोबाइल फेस को रन करवाएंगे थ्रू आउट द सिस्टम, और उसके बाद हमारे पास हमारे जो रिक्वायर्ड प्रोटीन या कंपोनेंट है वो आ जाएगा, या उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी। Next is affinity chromatography. Affinity chromatography is the purification on the base of molecule-molecule interaction. यानी कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है उसकी बेस पे जो प्योरिफिकेशन होती है उसे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सपोज हमारे पास एक सेल लाइसेट है। सेल लाइसेट मीनिंग जब भी कोई सेल ब्रेक होता है तो उसके बाद जो हमारे पास मिक्सचर आता है उसे हम सेल लाइसेट बोलते हैं। इसमें हमारे पास डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। तो सेल लाइसेट में से एक इंडिविजुअल प्रोटीन को हमने आइसोलेट करवाना है, तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन के बेस पे हम प्रोटीन को आइसोलेट करवाएंगे। मॉलिक्यूल इंटरेक्शन मीन्स दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन शो करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन शो करता है। इन द अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज लिक्विड, यानी बफर को हम एज अ मोबाइल फेज यूज़ कर रहे हैं, एंड द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, यानी मॉडिफाइड रेजिन्स। रेजिन्स आर द स्मॉल बीड्स। सपोज वी हैव अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन, द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन है हमारे पास और उसको हमने आइसोलेट करवाना है, तो उस केस में हम जो स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे या जो रेजिन यूज़ करेंगे वो निकल बाउंड रेजिन होगा, बिकॉज निकल जो है वो हिस्टोन के साथ मॉलिक्यूल इंटरेक्शन शो करता है। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर और द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम रेजिन को सिलेक्ट करेंगे। रेजिन को सिलेक्ट करने के बाद हम हमारे कॉलम को पैक करेंगे। कॉलम इज द ट्यूबलेक स्ट्रक्चर। कॉलम को पैक करने के बाद हम हमारे रेजिन को कॉलम में फिल करेंगे। देन इक्विलिब्रेशन, यानी कि इक्विलिब्रेट सॉल्वेंट को हम रन करवाएंगे थ्रू आउट द कॉलम। इक्विलिब्रेशन से हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो कॉलम है वो प्योरिफिकेशन के लिए रेडी है और अब हम इसमें सैंपल डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ द लोडिंग, यानी कि हम हमारे सैंपल को कॉलम में लोड करवाएंगे। जब हम सैंपल को लोड करवाएंगे तो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे, यानी कि सैंपल के मॉलिक्यूल और जो हमारे स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे और वो बाउंड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग। वॉशिंग में हम लो कंसंट्रेशन सॉल्ट का बफर यूज़ करेंगे और उसको हम रन करवाते हैं थ्रू आउट द कॉलम। आफ्टर वॉशिंग हमारे सिर्फ रेलिवेंट प्रोटीन जो है वो कॉलम में रह जाएगी और जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो वॉश्ड आउट हो जाएगा। लास्ट स्टेप इज द इल्यूशन। एल्यूशन में हम एक हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट के बफर को यूज़ करेंगे और उसको रन करवाएंगे थ्रू आउट द कॉलम। एल्यूशन के बाद हमें हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो मिल जाएगी, यानी हमारी सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। That's all about chromatography. Thank you so much.